So I have prepared for GATE twice and I have qualified once. Okay, so the rank was not that up to the mark. So then currently, like due to some privacy concerns, I can't disclose where I'm working. Okay, but it's not related to chemical engineering. But I have some good points to discuss with you all guys regarding chemical engineering, and it's like more about how to approach chemical engineering and what is chemical engineering. And I thought that there are students of BTech third year, fourth year, but even if you are like working, no issues. Okay, so we will have a discussion about the subjects and the interviews. Okay, like how to approach the interview, how to tackle the interview question as well. Okay, so we will wait for few more people to join and then we can start the session. Okay. Okay, okay, Sasha. Okay. Hi Akshay. Hello. Yeah, guys, see, you can speak up. Okay, so it's one of the good way. Communication skill are very much required. Okay, you go to in interviews and you know the answers and you're unable to explain that. Okay, so try to be more of okay, increase your communication. So it's one of the opportunity you have to describe yourself. So Chittaranjan hasn't spoke, Chaitali hasn't spoke, Akshay. It's up to you. Like if you want to speak, you can. Otherwise, no issues. Hardish, Sangati, Vikas, if you want to just give a background about yourself, like whether you are BTech students, MTech, or working somewhere else, Prajakta, you can just unmute yourself and you can express like what are you currently doing in your life. Prajakta, if you want to say something about you, just unmute your mic or speak. Yes, guys, no need to fear. Okay, so like we are not any senior guys or something like that. Okay, just a formal way of starting the session or webinar, you can say. And you can speak in any language, Marathi, Hindi, English. सुशांत सजेस्ट कर ना एक टॉपिक त्यांना बोलायला म्हणजे काहीतरी स्वतःहून ते काहीतरी बोलतील नाही का इंट्रोडक्शन द्यायला तर सांगाच पण Uh, मग दुसरं एक काहीतरी टॉपिक oh, सजेस्ट कर म्हणजे ते नाही का no, no, no. ओपनली थोडं Just बोलू शकतील
हो, लाईक आपण त्यांना तेच म्हणजे मला जाणून घ्यायचं ऑडियन्स नेमकं काय, बिकॉज सी आय एम मोर ऑफ अ टेक्निकल गाय. ओके, जर तुम्ही मला प्रोसेस बद्दल एखादा विचारतील तर आय कॅन्ट एक्सप्लेन दॅट. तुम्ही मला विचाराल की डेस्टिलेशन एक्सप्लेन कर और समथिंग लाईक दॅट, आय कुड गो इन व्हेरी मच डेप्थ. सर तेच मला ऑडियन्स जाणून घ्यायचं आहे, बिकॉज त्यानुसार मग मी हे करतो. बिकॉज मला फक्त तुम्हाला हे सांगायचं आहे की केमिकल इंजिनिअरिंगला कसं अप्रोच करायचं किंवा कसं स्टडी करायचं. बिकॉज तुम्ही स्विच करताना तुम्ही इंटरव्ह्यू सोबत कसं डील करायचं, जे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स असतात त्याला कसं डील करायचं, आणि इंजिनिअरिंगला इंटरेस्टिंग कसं बनवायचं, फक्त आपण ह्याच्यासाठी सेशन घेतो. ओके, कारण की बिकॉज आय एम नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल इन इट. ओके, आय एम जस्ट अ व्हेरी इन्थुझियास्टिक पर्सन इन केमिकल इंजिनिअरिंग, आणि मी खूप टचमध्ये असतो. सो दॅट्स वाय लाईक आय एम कंडक्टिंग दिस सेशन, nothing more about it. Okay, so Preeti, Ibrahim, if you want to speak about yourself, if you want to give an introduction about yourself, like what you're doing in your life currently, you can go ahead, otherwise no issues. Hello, sir. I am Ibrahim Turuk. I Okay. am currently working as a junior executive in the production. Okay. I have been 6 months experience now. If Hmm. I want to switch after 1 year to process, Great. So where from, process which engineer. college? Okay, okay, continue. I am from Gharda College, Gharda Correct. Institute of Technology. Okay, 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 good. So you're working in? Previous specialty chemicals. Okay, previous specialty chemicals. Okay, many Yes. of my classmates are working there. Okay, from Diba to Lonere. Okay. Yeah. As if I want to switch after 1 year to process as a process engineer. Okay, that see, Suhas will be more correct person to tell you about that. Like I am here to explain you regarding the like my, as you have seen the topic, like how to relate chemical engineering to real world. Okay, I would be doing that regarding how to switch from production to process or some another field to process. That Suhas will help you regarding that. Okay, sir. Okay. Okay, Ibrahim, Yeah. I No. will. Yes, sir. Okay, just give me 2 minutes, and we will continue this session. Okay, like see, you can share this session to, it would be very like eye-opening session for you guys. Okay, so you could just share this to your college group or something like that, so that we could start, right? Communication is very important, guys. Try to understand this. You need to express your thoughts very clearly, okay? Even if you have very less knowledge. Okay, just Sushant, just I Yes, will give some introduction. So yes. just good evening, everyone. Very welcome to all the participants joining us today for this exciting session by Process Wala webinar on how to study and relate the chemical engineering to the real world. So I'm truly glad to see such a great response from the students, graduate, and professional who are the eager to learn and grow the field of chemical engineering. So at the Process Wala, our mission is simple: the empowering the process engineer. So through this session, we aim to the bridge gap between the classroom learning and the real industrial practice. Today, we will explore the smart ways to study, how to connect the theory to real world applications, and understand how the chemical principles shape industrial process. So get ready to note down the insight, the ask the questions, and make this session interactive. Let's begin this wonderful learning journey together. So Sushant, you will continue this session. You will start this session. Okay. So let's start this session, guys. So I'll just share my screen. Let me know if my screen is visible, everyone. Is it visible? Yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, okay. So, like, see, first of all, you might be knowing, like, actually, what is chemical engineering? Okay. See, I will not give any fancy definition from McCapthelly or something like that. In simple words, see, chemical engineering, first of all, you all might be knowing that chemical engineering has nothing to do with chemistry.
Okay, we are the engineers who work beyond chemistry. Okay, we are not like that. We are in the laboratory. We are using pipettes. We are using beakers, and we are performing anything. We do that, but that is the work of the chemist. Okay, chemical engineering is a very broader domain. Okay, it is always quoted that chemical engineering starts where chemistry ends. Okay, so chemical engineering is a start point where chemistry ends. Okay, chemistry is they do in a small they work in a small laboratory. Okay, we work in an open fields. Okay, so chemical engineering is about unit operations and unit processes. So if someone asks you, mostly they ask in interviews like, what is chemical engineering? Simply you can say that, sir, chemical engineering is a branch of science in which we convert raw material into the actual valuable product, which is sellable product and which can be used in our daily usage. Okay, acids are there, soaps are there, papers are there, and lots of other industries are there. Okay, so some of the most I'll start with subjects in chemical engineering. Okay, the first subject, which is very important subject in chemical engineering, that is the process calculations. Remember, guys, if you want to enter in process, your process calculation needs to be very, very, very strong, because प्रोसेस कॅल्क्युलेशन इज द बेस ऑफ केमिकल इंजिनिअरिंग. जसं आपण म्हणतो ना की एक पाया जो असतो ना, तो आहे प्रोसेस कॅल्क्युलेशन्स. प्रोसेस कॅल्क्युलेशन्स तुमचा खूप स्ट्रॉंग पाहिजे जर तुम्हाला केमिकल इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा प्रोसेस फील्ड मध्ये जायचं असेल. You need to be very good in units and measurements, temperature conversion, pressure conversions, and everything. Okay, steady state mass balance, heat balance, flow balance, unsteady state mass balance, steady state mass balance, everything like that. It should be crystal clear in your brain. ओके, तर एक्चुअली मग प्रोसेस कैलकुलेशन मध्ये आपण काय शिकतो, या फिर हम प्रोसेस कैलकुलेशंस में एक्चुअली क्या करते हैं? देखो, केमिकल इंजीनियरिंग में एक ही चीज होता है, हम लोग बस मास बैलेंस करते हैं या तो हीट बैलेंस करते हैं. तीसरा चीज हम कुछ करते ही नहीं है. मास बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, जितना मास एंटर आ रहा है, कितना मास एक्युमुलेट हो रहा है और कितना मास बाहर जा रहा है, पूरा केमिकल इंजीनियरिंग इसी के ऊपर है. या फिर कितना एनर्जी अंदर आ रहा है, कितना एनर्जी बाहर जा रहा है और कितना एनर्जी अकोमुलेट हो रहा है. पूरे केमिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग इतना ही पढ़ते हैं, और प्रोसेस कैलकुलेशन सबको वही सिखाता है. या तो वो स्टेडी स्टेट हो सकता है या तो अनस्टेडी स्टेट हो सकता है. सो इन इंटरव्यूज दे आस्क व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेडी स्टेट एंड अनस्टेडी स्टेट. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चीज चेंज हो रही है, ओके, देन दैट इज अनस्टेडी स्टेट. अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, दैट इज अ स्टेडी स्टेट. ओके, तो उसके ऊपर आप मास बैलेंस लगाते हो. उस केस में आपका जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला जो है वो एकोमुलेशन वाला फैक्टर जीरो हो जाता है. तो उस केस में मास बैलेंस आपका होता है इनपुट माइनस आउटपुट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन इक्वल टू जीरो. ओके, तो इनपुट माइनस आउटपुट प्लस प्लस ऑफ जनरेशन माइनस कंजम्पशन इक्वल टू, ये एकोमुलेशन वाला पार्ट आता है. मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है ना गाइज? Yes, yes, yes. Okay, so accumulation is zero steady in case of the steady state. Okay, तो process calculations में हम पूरा चीज यही पढ़ते हैं. Okay, तो complete process calculation it needs to be very 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 strong. Okay, so process calculations में आपका हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए. ओके, जैसे कि बहुत ज्यादा रिलायंस वगैरह आती है तो वो लोग देखते हैं कि प्रोसेस कैलकुलेशंस बंदे का कितना अच्छा है. ओके, तो जस्ट सॉरी. तो वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, तो द सेकंड सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस. तो देखो अभी जैसे कि अपना टॉपिक है कि हीट ट्रांसफर को आप कैसे इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं. देखिए, आप सुबह उठते हैं, आप सपोज ठंडी है आपके इधर एंड यू वांट टू हैव अ बाथ. ओके, सो यू पुट द हीटर इनटू द बकेट ऑफ वाटर. ओके, एंड यू पुट ऑन द बटन. ओके, सो आपका हीट ट्रांसफर का पढ़ाई उधर से ही चालू होना चाहिए. कंडक्शन इज हैपनिंग. ओके, कंडक्शन इज हैपनिंग. कंडक्शन से फिर कंडक्टिव रेडिएशन इट इज गोइंग इनटू योर वाटर एंड देन कन्वेक्शन इज हैपनिंग. एंड देन अगेन फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वहां पे चालू होता है. आपका ऊपर लेयर जो है वो हीट होने लगता है. एज वी ऑल नो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डेंसिटी डिक्रीजेस. तो डेंसिटी डिक्रीज होने मतलब क्या होगा, आपका पानी नीचे जाएगा, आपका जो कोल्ड वाटर है वो हॉट वाटर है वो नीचे जाएगा, कोल्ड वाटर ऊपर आएगा. तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा, टर्बुलेंस स्टार्ट होगा. तो केमिकल इंजीनियरिंग आपका यही से स्टार्ट होता है. ओके, सो आपको कहीं पे भी आपको मतलब चीजों को रियल वर्ल्ड से रिलेट करना है. देखिए, इंजीनियरिंग जो है किसी बुक्स में नहीं है. इट्स नॉट इन बुक, इट्स नॉट इन एनीवेयर. ओके, इट्स इन योर सराउंडिंग.
बस बुक्स ने क्या किया है, उस चीजों को फॉर्मूला से फॉर्मुलेट किया है। ओके, घर में आपकी मम्मी जो है सब पकाती है। ओके, तो हेलो, हेलो, ओके, so your mother adds salt into the water. So your mother doesn't know that by adding salt into the water, there is an boiling point elevation and it will help you to cook your food faster. Okay, she don't know that, but it's a engineering behind that. That if you are adding salt to the water, there is an boiling point evaporation, boiling point elevation. Due to that, a water which is going to boil at 100 degrees Celsius, it will boil at 105 degrees Celsius. So that extra 5 degrees Celsius which you're getting, that will help you to cook your food faster. Okay, the second I would give example is a pressure cooker. Pressure cooker में क्या होता है, फूड आपका जल्दी बनता है. इफ यू आस्क योर मदर कि मॉम व्हाई वी आर यूजिंग प्रेशर कुकर इंस्टेड ऑफ ओपन पैनल, शी विल से दैट फूड विल कुक फास्टर बिकॉज शी हैवंट स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग, बट शी नोज कि बाबा इसमें कुकर में अगर हम करेंगे तो फूड हमारा फास्टर वहां पे चलेगा. व्हाई? बिकॉज सी प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. टेम्परेचर इंक्रीजिंग मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, आपका वाटर फटाफट इवेपोरेट नहीं हो गया, आपका वाटर वहां पे रहेगा. वाटर वहां पे रहेगा मतलब आपकी वाटर की सीपी बढ़ेगी, क्यू इजिकल टू एमसीपी डेल्टा टी. तो सीपी आपकी बढ़ेगी इन द सेंस आपका जो वाटर है वो आपको कुकिंग फास्टर करेगा. वो फटाक से हीट लेके इवेपोरेट होने नहीं देगा, वो वहां पे रहेगा. इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प दैट फूड कुक फास्टर. ओके, सो ऐसा आपको रिलेट करना है. ओके, up even if you are boiling water, you keep the you always have a container on that. Why? वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपका वाटर कब बॉईल होता है, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वेपर प्रेशर दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं और वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो आपको वहीं पे समझ में आना चाहिए. इंटरव्यू में पूछ तो बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब व्हाट इज टेम्परेचर, द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. दिस इज नॉट अ डेफिनेशन. ये 11 12 या फिर 8 स्टैंडर्ड का डेफिनेशन है. बीइंग का केमिकल इंजीनियर, आपने 4 साल की केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वो आपके आंसर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए. आपको कोई एंथैल्पी पूछता है, एंट्रोपी पूछता है, तो आपको उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते आना चाहिए. और तभी होगा व्हेन यू आर एबल, यू हैव दैट क्यूरियोसिटी. ओके, जब आप रिलेट कर सको चीजों को और जब आप अंडरस्टैंड कर सको. आप बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्शन है, तो आप देखते हैं कि प्रोडक्शन में जो चीजें यूज होती है वो दैट हैज केम फ्रॉम द रियल वर्ल्ड ओनली. ओके, दैट इज नॉट लाइक कोई साइंस है कोई पीछे. ओके, तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कंडक्शन पढ़ते हैं, वी स्टडी कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन, हीट एक्सचेंजर्स. हीट एक्सचेंजर्स का तो पूरा कॉन्सेप्ट वही से आता है. ओके, हॉट फ्लूइड जाएगा, कोल्ड फ्लूइड आएगा, हॉट फ्लूइड हीट अपना कोल्ड फ्लूइड को देगा, एंड देन फिर वो को करंट, काउंटर करंट, एवरीथिंग विल कम इनटू दैट. इजंट इट? Any doubt till here? Anyone? If you want to ask anything till here, anyone? बोर हो रहा है सेशन या फिर ऐसा कुछ है तो भी बताओ गाइस, सो दैट मैं बस आपको एक इंटरेस्ट है फिर इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करते हैं, फिर केमिकल इंजीनियरिंग को कैसे रिलेट करना चाहिए, ये मेरा मेन मोटो है. आपको एक स्पार्क आना चाहिए जब भी आप नल का पानी खोले. एम इज इक्वल टू रो यू वन ए वन, कंटिन्यूटी इक्वेशन है वहां पे. ओके, यू वन ए वन इज इक्वल टू यू टू ए टू. ओके, मतलब जहाँ पे आप अगर कोई पाइप लेके पानी दे रहे हो या फिर अपना बाइक धो रहे हो आप, वहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन है वहाँ पे. P1 अपॉन रो जी प्लस जी जेड वन प्लस U1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ईटा डब्ल्यू पी इजिकल टू P2 अपॉन रो जी. वो पूरा बर्नौलीज इक्वेशन है वहाँ पे. इजंट इट? तो आपको वो चीजें वैसे आनी चाहिए. और प्रोसेस इंजीनियर को तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन कैलकुलेशन. तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका जो दिस प्रोसेस कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में मैंने बताया कि कंडक्शन, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, इवेपोरेशन है. ओके, तो जैसे इवेपोरेशन का कंसेप्ट आपको पता होगा. जैसे रेन होता है अपने इधर, रेन कैसे होता है, बारिश गिरती है, वाष्पीभवन बोलते हैं मराठी में. ओके, तो सी लेवल है, वाटर आपका इवेपोरेट हो गया, वो जाके क्लाउड बनता है, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है. आपका डेस्टिलेशन पूरा इसी के ऊपर बेस है. नीचे आपका रीबॉयलर रहता है, सॉरी हाँ, नीचे आपका रीबॉयलर रहता है, ऊपर आपका कंडेंसर रहता है. आप आंख बंद करके ऐसा बोल सकते हो, क्लाउड से आपका कंडेंसेशन हो रहा है और आपका जो क्या बोलते हैं सी सरफेस से आपका इवेपोरेशन हो रहा है. सिंपल, पूरा डेस्टिलेशन उसी के ऊपर बेस्ड है. उसी को हमने उसको मतलब थोड़ा सा मैकेपथेली मेथड लगाया वहाँ पे. वहाँ पे मोर वोलाटाइल कंपोनेंट लगाया, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट लगाया. मोर वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट. लो लो वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब लो वेपर प्रेशर, लो बॉइलिंग पॉइंट. हमने बोला एमवीसी ऊपर जाता है, एलवीसी नीचे आता है. तो फिर उसमें मैकेपथेली मेथड आ गया. मैकेपथेली मेथड में हम लोग वी काउंट द ट्रेज इन इट, वी डू एक्स्ट्रा स्टफ इन इट. सो डेस्टिलेशन इज केम फ्रॉम सराउंडिंग.
Okay, distillation मैकैब haven't means it, वो उसके ड्रीम में नहीं आया है, उसने सराउंडिंग को देखा है, चीजों को पढ़ा है, उसके ऊपर मैथमेटिक्स लगाया है, एंड देन डेस्टिलेशन केम इनटू योर बुक्स, एज सिंपल एज दैट। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सट्रैक्शन आप करते हो, लीचिंग आप करते हो, चाय आप बनाते हो। ओके, डिफ्यूजन होता है आपका, जो चाय की पत्ती है बेसिकली इट गोज इनटू योर वाटर, एंड ओके द कलर ऑफ योर वाटर चेंजेस। ओके, तो टी का कलर बन जाता है ब्राउनिश। सो दैट इज पर्टिकुलर डिफ्यूजन। ओके, तो जब आप चाय गालते हो, यू आर डूइंग द लीचिंग प्रोसेस। ओके, तो ऐसे आपको रिलेट करता आना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग को, ऐसे आपको इंटरव्यूअर को सामने बताने आना चाहिए, और ऐसे ही आप प्रोसेस इंजीनियर को मतलब अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वे। ओके, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस में फिर क्या क्या है, जैसे मैं बताया, डिफ्यूजन है, इंटरफेस मास ट्रांसफर है, डेस्टिलेशन है, एक्सट्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन है। बाकी कुछ नहीं, मैं गेट के सिलेबस के हिसाब से जा रहा हूँ। ओके, कि इतने टॉपिक्स है, और इतने टॉपिक को जब आप ऐसे रिलेट करते चलोगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि ओके दिस इज लाइक दिस, आई कैन रिलेट इन टू दैट, दिस थिंग इज लाइक दिस। ओके, सो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। नाउ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, अभी इसको थोड़ा सा मतलब रिलेट करना इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो ओके, रिएक्टर क्या होता है, आप कोई भी मतलब ग्रुप में बता सकते हो बेसिकली क्या है रिएक्टर, क्या लगता है आपको? एनीवन, कम ऑन गाइस। केदार, साहिल, Reactor एनीवन? is a vessel in which we add the ingredients from like raw materials, and then according to temperature, pressure, and flow, and that stirring, so that raw materials converted into finished good products. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, देखिए, रिएक्टर जहीं जहां पर भी रिएक्शन हो गया वो रिएक्टर हो गया। अब कभी कभी आपके पाइप में रिएक्शन होता है तो पाइप आपका रिएक्टर बन गया उस केस में। तो रिएक्टर मतलब ऐसा कोई एक कंसेप्ट नहीं है कि एक मतलब एक फिजिकल एक कंटेनर होगा उसमें हम लोग रिएक्टेंट डालेंगे, नहीं। वेर एवर देर इज हैपनिंग रिएक्शन, आपका सिंपल मैं बोलता हूँ, आप दही जमाने के लिए रखते हो। ओके, गांव के लोग आप सब लोग, तो क्या होता है वहां पे फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है, आपका ग्लास वहां पे रिएक्टर बन जाता है। आपका योर ग्लास एक्ट्स एज अ रिएक्टर इन दैट केस। ओके, सो आप ऐसा रिलेट करिए चीजों को, आप एक बार रिलेट करोगे आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। then you can anytime you can able to like understand the subject। okay, so गेट में तो ये बहुत चीज लगता है बिकॉज गेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको उस केस में आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू नीड टू रिलेट दैट सब्जेक्ट, यू नीड टू रिलेट द थिंग्स टू द एक्चुअल वर्ल्ड। ओके, एक्चुअल वर्ल्ड को आपको रिलेट करना होता है बहुत ज्यादा चीजें। सो दिस इज हाउ हाउ वे वी लर्न केमिकल इंजीनियरिंग। अभी बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि वी आर कमिंग फ्रॉम अ लाइक I would not say bad colleges, but in such colleges that these things are not taught कि पढ़ना कैसे है। ओके, कैसे रिलेट कर करके पढ़ना है चीजों को। ओके, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, वी डोंट नो। हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, बट dy बाई डी एक्स क्या है, वो पर्टिकुलर चीज क्या है, हमको ये चीजें हमको समझना है। जब हम समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि ओके ये ऐसा ऐसा चीज है, तब आपके गेट के क्वेश्चंस भी निकलेंगे और आप कैलकुलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे। द मेन प्रॉब्लम इज कि हमका थ्योरी बहुत अच्छा है। ओके, वी आर वेरी गुड इन थ्योरी, समवन आस्क यू दैट, डिप्लोमा में वही चीजें पढ़ाते कि थ्योरी बहुत अच्छा है, बट व्हेन आई से कि ओके दिस इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमको नहीं आता। हम प्रॉब्लम्स देख के डरते हैं, वी से दैट नो 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 नो, प्रॉब्लम हमको नहीं, थ्योरी बताओ, हम लोग थ्योरी पूछेंगे, थ्योरी आंसर करेंगे, दैट्स इट। तो ये जो फियर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपको निकालना है प्रोसेस इंजीनियरिंग में। व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग, आपको प्रॉब्लम्स के साथ खेलना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स के साथ मजा आना चाहिए, दैट इज द कोर पार्ट। ओके, तो मास ट्रांसफर में यही होता है। ओके, तो सीआरई में बता रहा था, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग तो वही है जैसे केदार ने भी बताया कि रिएक्टेंट्स हम लोग डाल रहे हैं। ओके, एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, हम लोग टेम्परेचर प्रेशर दे रहे हैं, और देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर। तो कंटिन्यूस स्टीलर टैंक रिएक्टर है, बैच रिएक्टर है, प्लग फ्लो रिएक्टर। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि यार चलो सीएसटीआर और पीएफआर के बीच में डिफरेंस क्या है। सो वी डोंट नो कि क्या है। पहली तो चीज सीएसटीआर जैसी, कितने लोगों के कंपनी में सीएसटीआर है? सीएसटीआर क्या मतलब रियल रिएक्टर है क्या? सीएसटीआर इज एन आइडियल रिएक्टर। आइडियल चीज कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है गाइस। आइडियल मीन्स समथिंग विच इज टू द टॉप मोस्ट एक्सेप्शन। ओके, इंडिया में सब लोग वोट करेंगे, दिस इज एन आइडियल केस, ये ऐसा नहीं हो सकता।
ओके, तो CSTR का वही केस है. CSTR is a steady state reactor in which they are assuming that every molecule will collide with each other. V is equal to F naught into XA upon minus RA. ये इक्वेशन है उसका. तो नेक्स्ट सेशन में लाइक आई वुड बी डिराइविंग द इक्वेशंस, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन, एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है ये, ताकि आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाने के लिए क्या क्या लगता है, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग को कैसे चीज़ों को रिलेट करना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ. देखो, ये चीज़ें सिखाने के लिए तो क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. ओके, हिट आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको हजारों लोग, अभी तो अन अकेडमी के हैं, ओके, बहुत सारे एजुकेटर्स है जो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं. ओके, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि रिलेट कैसे करना है सब्जेक्ट को, खुद से इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टफ. ओके, एंड हाउ टू एक्चुअली डिलीवर इन इंटरव्यू. अब जैसे मैंने बोला कि बहुत लोगों को बोला कि स्पीक अप. नो, मेनी फ्यू पीपल एक्चुअली स्पोक अबाउट देमसेल्फ. यू नीड टू बी, आपको आता सब कुछ है, यू आर नॉट एबल टू बी एक्सप्लेनेटरी अबाउट योर कंसेप्ट्स. इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थॉट्स, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. आप कितना भी नॉलेज हो दें, आप प्रोसेस में जाए, आपके इंटरव्यूज ही नहीं निकलेंगे, क्या करोगे आप? कोई फायदा नहीं उस चीज का. ओके, तो जैसे अब CRE में जैसे मैं बोल रहा था, CSTR PFR. तो PFR, CSTR और PFR क्या है, दोनों दोनों स्टेडी स्टेट रिएक्टर है. ओके, और जो आपका जो बैच रिएक्टर है, दैट इज एन कम्प्लीटली एन अनस्टेडी अनस्टेडी स्टेट रिएक्टर है. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप बैच वाइज उसमें डालते हैं चीजें. ओके, एंड देन उसका बाहर निकलते चलता है. तो PFR एंड CSTR में ये एक डिफरेंस है कि PFR में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्चुअली चेंज होता है. ओके, और जो CSTR में जो चेंज होता है, दैट इज इन अ कंप्लीट, मतलब पूरे वेसल में चेंज होता है. उसको बोलते हैं कंटिन्यूस टीडर टैंक रिएक्टर, जहाँ पे एवरी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. इसलिए CSTR जो है वो लिक्विड, मतलब जो क्या बोलते हैं, लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए ज्यादा यूज होता है, एज कंपेयर टू जो आपका जो PFR है वो गैस फेज के लिए ज्यादा यूज होता है. बिकॉज प्लग फ्लो जो है वो गैस फेज, मतलब जो क्या बोलते हैं, गैस आपका प्लग फ्लो ज्यादा देता है. प्लग फ्लो मतलब क्या, कि देर इज नो बाउंड्री लेयर. ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट नेक्स्ट सेशन अगर जब भी मैं लूंगा तो इसके बारे में आई वुड बी हैविंग अ नोटपैड, और मैं पूरा आपको लिख लिख के समझाऊंगा. ओके, थर्ड थिंग इज फ्लूइड मैकेनिक्स गाइस. सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड मैकेनिक्स है. देखिए, आपका रॉ मटेरियल आपके फिनिश प्रोडक्ट तक फ्लो होता है, राइट? इट विल फ्लो. फ्लो मीन्स पाइप आया, आपका पाइप आया मतलब आपका वेलोसिटी आया, वेलोसिटी आया मतलब विस्कोसिटी आया. एवरीथिंग इज फ्लूइड मैकेनिक्स गाइस. फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स है, एंड देन आपका बर्नौलीज इक्वेशंस वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बर्नौलीज इक्वेशंस, मतलब लोग मतलब बता नहीं पाते बर्नौलीज इक्वेशन क्या है. बर्नौलीज इक्वेशन क्या है आपको, मतलब एनीवन फ्रॉम द पॉडकास्ट, लाइक क्या है बर्नौलीज इक्वेशन? एनीवन, कोई भी बताओ, बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअल में क्या है? हेलो, कोई भी बता सकते हैं, गलत हो सही हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. एनीवन, एनीवन हु इज स्टडिंग फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिनको बीटेक का थोड़ा कुछ याद है, हल्की फुल्की चीजें. मैंने तो 21 में किया है, तब भी याद है. आपको तो याद रहना चाहिए, 23 पास आउट हो. एनीवन, MP कोई तो बाटू से मास्टर्स कर रहा था, ही कुड एक्सप्लेन व्हाट इज बर्नौलीज. नो आंसर्स गाइस. ओके, देखो, बर्नौलीज बेसिकली क्या है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, केमिकल इंजीनियरिंग में दो ही चीजें होती है, एक तो आप लोग मास बैलेंस करते हैं, या तो आप लोग ये एनर्जी बैलेंस करते हैं. तो बर्नौलीज क्या बोलता है सिंपली, कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और आपका जो ये है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है साइड पे रहेगा, उतना ही दूसरे साइड पर रहेगा. ओके, सिंपल हम लोग बोलते हैं कि P1 अपॉन रो जी, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड, प्लस GZ. GZ क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस U1 स्क्वायर अपॉन 2G क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है. जो एक साइड पे रहेगा वही दूसरे साइड पे रहेगा. सिंपल है. एक साइड की एनर्जी दूसरे साइड की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए. ओके, जब आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए में या तो आप बचाओगे या तो आप खर्च करोगे. तीसरा ऑप्शन है क्या? देर इज नो थर्ड ऑप्शन, राइट? यू आर इधर गोइंग टू स्पेंड और इधर यू आर गोइंग टू सेव द मनी. द सेम वे
happens in the mass balance. Either it would be accommodated or it will go outside. As simple as that. So fluid mechanics आपका कहाँ कहाँ पे दिखता है? Everywhere there is fluid mechanics. जहाँ पे आप काइट उड़ाते हो, whenever you're using the kite, वहां पे भी पूरा fluid mechanics है. Your aeroplane is flowing, वहां पे भी fluid mechanics है. ओके, एवरीवेयर बर्नौलीज इक्वेशन है. जहाँ पे आप बर्नौलीज इक्वेशन है, सब तरफ कंटिन्यूटी इक्वेशन है. तो फॉर प्रोसेस इंजीनियर्स फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है गाइस. एक प्रोसेस कैलकुलेशन सेकंड में इंपॉर्टेंस है फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पूरा आना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या है. ओके, आपका मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है. एनीवन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड? गलत हो सही हो बताओ गाइस. लाइक ट्राई कर सकते हो आप. देखो बताने के लिए मैं हूं, बट आप इवन एटलीस्ट यू कैन ट्राई ना. एनीवन? कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल देख के गूगल कर, Liquids देख are के. incompressible and gases are compressible, and which ओके. can ओके, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल एंड गैसेस आर, डेंसिटी लिक्विड्स आर. डिफरेंस. हाँ, ओके. देखो जहां पे भी डेंसिटी आपका चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द फ्लो, Hello everyone. हेलो. हाँ, Yes, yes, yes. ओके ओके, सॉरी. तो जहां पे भी आपका देखो, आपका विद इन द फ्लो अगर आपका क्या हो रहा है, आपका डेंसिटी चेंज हो रहा है, सो दैट इज सिंपली हम उसको बोलते हैं कि दिस फ्लूइड इज एन कंप्रेसिबल फ्लूइड. गैसेस कंप्रेसिबल है गाइस, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल. तो हाँ चैताली, हैंड रेस किया आपने. हेलो. ओके, तो वो कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है. तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या गैसेस के लिए है या लिक्विड्स के लिए है? एनीवन? Bernoulli's equation, is it for compressible fluid or incompressible fluid or both? Anyone? both. It's for both. For Who said liquid. it's for both? Who said for both? Who said for liquid? फॉर लिक्विड बताइए. सर. लिक्विड. फॉर ओके, बिल्कुल. लिक्विड. ओके. तो गैसेस के लिए कौन सा लॉ है? कोई अल्टरनेटिव लॉ है गैसेस के लिए? जैसे बर्नौलीज आइडियल जो है. गैस लॉ. हाँ, आइडियल आइडियल गैस गैस लॉ. लॉ. ओके. पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. ओके, आइडियल गैस लॉ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो नॉन आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन है? आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज राइट. नॉन आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन है? बिकॉज देखो, आइडियल चीजें हम पढ़ते हैं, नॉन आइडियल पढ़ना भूल जाते हैं. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. नॉन आइडियल के लिए कौन सा है? वेंडरवॉल्स इक्वेशन का नाम सुना है? यस सर. सर नहीं, सुशांत. ओके, तो वेंडरवॉल्स इक्वेशन जो है, देखो आइडियल गैस मतलब क्या? आइडियल गैस ये बोलता है कि मैं वॉल्यूम, मतलब एक गैस, आइडियल गैस का क्या डेफिनेशन है कि मेरे एक कंटेनर में आइडियल गैस है, तो वो बोलता है कि मैं वॉल्यूम लूंगा बट मेरा वॉल्यूम कंसिडर नेग्लिजिबल है. ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आप बैठ गए हो आप और आप बोल रहे हो कि मैंने कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया? ऐसा कभी नहीं हो सकता ना. समथिंग आप वॉल्यूम ऑक्यूपाई करोगे. ओके, तो वो निग्लेक्ट करता है आइडियल गैस. तो वो वेंडरवॉल्स ने क्या किया, उसको एडिशन किया कि भाई एनबी नाम का तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने नाम का वॉल्यूम आप लोग कंसिडर मतलब ऑक्यूपाई करते हो. ओके, वो है. और आइडियल गैस जो है वो एकदम लो प्रेशर पे रहता है. मतलब लो प्रेशर पे वो क्या बोलते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. अभी आप चीज बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे नहीं होगा? कुछ ना कुछ तो दो मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. लेकिन आइडियल गैस बोलता है कि नहीं है. सो विच इज नॉट पॉसिबल. वेरी वेरी लो प्रेशर पे पॉसिबल है, बट रियल केसेस में आइडियल गैस प्रेशर भी ऑक्यूपाई करता है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है. तो वेंडर वॉल्स ने उसको क्या किया फिर, उसको मतलब ये कर दिया
करेक्शन कर दिया उसमें। ओके, जैसे बर्नौलीज में भी करेक्शन है। बर्नौलीज में क्या है करेक्शन, कि आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्लस ईटा डब्ल्यू पी, वहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म है कि पंप पावर जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे लगता है। और एच एफ जो है, एच एफ मतलब क्या है आपका, देखिए आपका योर फ्लूइड इज फ्लोइंग। आप गाइस कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, लाइक इंग्लिश या फिर मैं कोई भी लैंग्वेज यूज कर दूं तो चलेगा? Okay, so I'll use English and Hindi both. Okay, because in interview, English is much more mandatory than Hindi. Okay, ओके। तो वहां पे एच एफ क्या है, एच एफ क्या है आपका, दैट इज द फ्रिक्शन लॉसेस। नाउ व्हेन योर फ्लूइड इज फ्लोइंग देयर आर वॉल्स इन इट। ऐसे तो नहीं हो सकता कि इन अ पाइप देयर आर नो वॉल्स, देयर आर वॉल्स इन इट। सडन चेंज होता है फ्लूइड में। ओके, देयर इज अ सडन चेंज, बेंड्स रहते हैं। सो देयर इज अ प्रेशर लॉस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ओके, व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू वॉल्स देयर इज अ प्रेशर लॉस, व्हेन अ फ्लूइड there is a sudden expansion, there is a pressure loss, when there is a sudden contraction there is a pressure loss। सो वो एनकाउंटर करने के लिए एच एफ का टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बर्नौलीज में। ओके, सो देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर पंप्स। एनीवन वुड एक्सप्लेन व्हाट इज पंप्स सिंपल वे में, कि भाई पंप्स ये चीज है? एनीवन? Fluid is flowing one point to another point. ग्रेट। ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक? नीचे वन से पॉइंट टू ऊपर तक। अनदर, नीचे से ऊपर तक, और ऊपर से Yes, नीचे तक बाय ग्रेविटी। yes, by gravity. और वर्टिकल में Potential, kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर Yes, एनर्जी? बोथ? both are same. बोथ आर देयर। ग्रेट। तो देखो गाइस, सिंपल है। ऊपर से नीचे तक पानी आने के लिए ग्रेविटी इज देयर। ओके, ग्रेविटी विल टेक दैट थिंग इनटू एनकाउंटर। ओके, बट फ्लूइड आपको अगर नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है, सो पंप्स एक इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, आप नोट करके लो इफ यू आर हैविंग पेन और बुक। पंप्स आपका पूरा 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 पंप्स यू नीड टू हैव अ बाय हार्ट, बिकॉज पंप्स ही केमिकल इंजीनियरिंग को चलाते हैं। जितना आपका यूनिट ऑपरेशंस रहेगा नहीं रहेगा, डेस्टिलेशन रहेगा नहीं रहेगा, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट पंप्स इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो पंप्स में कौन सा है, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ओके, और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है। दोनों का जो जो वर्किंग है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एनीवन कैन, अगर आपको पता है तो यू कुड आंसर। आपका बॉडी में एक पंप है। ओके, सो वो कौन सा है, लाइक आपका हार्ट एक पंप है। ओके, सो इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप? आपका हार्ट, व्हाट इज योर हार्ट? योर हार्ट इज अ पंप, राइट? हार्ट आपका पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। सो वो कौन सा है पंप? एनीवन? गूगल करके भी बताओ तो भी चलेगा गाइस, बट आई वांट यू टू स्पीक। ओके, ओके, कोई नहीं। Positive displacement pump. करेक्ट, इट्स अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप गाइस। आपका जो हार्ट है इट वर्क्स एज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो आपका बॉडी ही आधे से ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग से बना है, आधे से ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग आपकी बॉडी में ही है। इफ यू कुड स्टडी द ह्यूमन बॉडी वेरी केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, आप दोनों हैंड रब रब करते हैं ड्यूरिंग विंटर। ओके, विच इज दैट लॉ? एनीवन? कौन सा लॉ है वो? थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ है वो? When you are rubbing two hands during your winter, which law is it? First law of thermodynamics, right? Q is equal to delta U plus W। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें हैं, आपका एक ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। व्हेन यू आर फीलिंग वेरी मच कोल्ड, तो आप दोनों हैंड्स रब करते हैं। ओके, तो आप क्या करते हैं, आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं गाइस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है बेसिकली, जितना आपका वर्क अगर हीट में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल। अभी बहुत लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। किताबी डेफिनेशन है, ठीक है, बोलने के लिए सुनने के लिए अच्छा है, बट रियल वर्ल्ड में
सिंपल टू हैंड्स रब करके अगर आप दिखाओगे इंटरव्यूअर को, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितना आप वर्क कर रहे हो उतना आपका हीट जनरेट हो रहा है, कुछ हीट बाहर आ रहा है, कुछ हीट आपका हाथ ही एब्जॉर्ब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू, सिंपल। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके घर में है, एनीवन? कहाँ पे है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में है? Refrigeration. करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट पीपल। रेफ्रिजरेशन इज अ वेरी एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपका सिंपल देखिए, आप हॉट से टेम्परेचर लेके कोल्ड में डाल सकते हैं, कोल्ड से लेके हॉट में डालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वर्क लगता है गाइस, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर वो एंट्रोपी वगैरह कंसेप्ट आ जाता है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, सिंपल। तो वही चीज है, मतलब अगर मैं बहुत डेप्थ में जाऊं तो वो क्लेशियस इनइक्वालिटी है, और आपका दो ये है इक्वेशंस, एक केल्विन प्लैंक है और क्लेशियस इनइक्वालिटी है। सिंपल दोनों यही चीज बोलते हैं कि देखो, हॉट से टेम्परेचर लेके कोल्ड में पहुंचाना इजी है, बट कोल्ड से टेम्परेचर लेके हॉट में पहुंचाना डिफिकल्ट है। आपका रेफ्रिजरेटर वही करता है, राइट? कोल्ड है लेकिन तब भी वो क्या करता है, अंदर का हीट लेके बाहर फेंकता है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क लगता है, इसलिए आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल है गाइस। सो देयर कम्स द वेपर कंप्रेशन साइकिल वेयर देयर इज लाइक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्ट्स द पिक्चर। तो हीट पंप वगैरह वही चीजें है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें, ईटा डब्ल्यूपी हम लोग बोलते हैं, फिर ईटा इज इक्वल टू हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट बोलते हैं, और उस पे पूरा इक्वेशंस हम लोग लगाते हैं। तो क्लेशियस ने कुछ अलग नहीं किया, क्लेशियस ने बस उसको ऑब्जर्व किया, और क्लेशियस इनइक्वालिटी उन्होंने बोला, एंट्रोपी नाम का एक कंसेप्ट उसने डाल दिया वहां पे बीच में। एंथैल्पी तो था ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव बर्थ टू द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है एनीवन? व्हाट इज एंट्रोपी? जयश्री, पंकज, विपुल, चैताली, प्रीति, केदार, थोड़े और लोग रहते तो Disorderedness. गाइस मजा रहता, थोड़े और लोग अगर रहते तो। ओके, अक्षय, व्हाट यू सेड? हाँ अक्षय, बराबर बोल रहे थे आप, डिसऑर्डर बोलो ना अक्षय। Yes, sir. ओके, हाँ आप बता रहे थे कुछ, तो डिसऑर्डर कुछ तो बोल रहे थे आप एंट्रोपी के बारे में। Entropy is randomness of disorder system. करेक्ट। देखो, एंट्रोपी पूरा वही चीज है, एंट्रोपी माने डिसऑर्डर। कोई भी आपका सिस्टम ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रह सकता। आप आपका रूम कितने बार भी क्लीन करो वो गंदा ही हो जाता है, तो वो यूनिवर्सल का नियम है कि एंट्रोपी विल ऑलवेज टेंड टू इंक्रीज। सो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट कांट बी जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है, एंट्रोपी ग्रेटर देन ही हो सकता है, जीरो हो ही नहीं सकता। तो एंट्रोपी मतलब क्या, सिंपल रैंडमनेस। जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस रहता है, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी कुछ मतलब ये नहीं है, ऐसा एक कंसेप्ट, ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एंट्रोपी सिंपल रैंडमनेस। ओके, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाने से पहले मैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास जाता हूँ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी फ्रेंड हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दैट इज द सिंपल थर्ड लॉ, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, और आपका जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो वही बताता है कि एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज ऑलवेज मोर, ओके, इट्स ग्रेटर देन जीरो। तो मैं बहुत इसके डीप में नहीं जाना चाहूंगा गाइस, जस्ट मैं आपको रिलेट करवाना चाहूंगा, जैसे अक्षय ने बताया, अक्षय या फिर विपुल ने बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको रेफ्रिजरेशंस में देखने मिलता है। ओके, सो और थर्मोडायनेमिक्स में सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर आता है आपका, तो उसमें बहुत ही एडवांस और बहुत ही डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है वो, तो उसके बारे में हम लोग बाद में अभी डिस्कशन करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मो को कैसे पढ़ना है या फिर कैसे रिलेट करना है ये मैंने बता दिया। ओके, तो फॉर एग्जांपल लाइक एंथैल्पी और इंटरन ये
आपका इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस क्या है पूछते हैं। ओके, सो एंथैल्पी क्या होता है? हीट कंटेंट इन अ कांस्टेंट प्रेशर। और इंटरनल एनर्जी क्या है? हीट कंटेंट इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम। आप मुझे एक चीज बताइए, आप खाना पका रहे हैं, आपने ऊपर का ढक्कन रख लिया है, तो जो हीट आप दे रहे हो वो वेसल में उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, ना कि आपका एंथैल्पी बढ़ा रहा है। एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट आपका प्रेशर है लेकिन वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, उस केस में एंथैल्पी होता है। हीट कंटेंट ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए आप लोग सीपी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। तो सीपी और सीवी में यही डिफरेंस है। फिर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर वाला वो अलग कंसेप्ट आ जाता है। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स में ये सब चीजें ज्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी इतना ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगता है जितना फ्लूइड मैकेनिक्स लगेगा, जितना मास ट्रांसफर लगेगा और जितना हीट ट्रांसफर लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैलकुलेशंस आपका लगेगा, सबसे ज्यादा प्रोसेस कैलकुलेशंस, सेकंड फ्लूइड मैकेनिक्स, देन हीट, देन मास। देन विल डिस्कस अबाउट थोड़ा डायनेमिक्स एंड कंट्रोल को बाद में। मैकेनिकल ऑपरेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन गाइस, किचन के बाहर मैकेनिकल ऑपरेशन जा ही नहीं सकता। पूरा का पूरा मैकेनिकल ऑपरेशन आपके किचन में। क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिकल ऑपरेशन में? अगर किसी ने गेट के बारे में, गेट थोड़ा भी पढ़ा होगा, हम लोग क्रशिंग पढ़ते हैं, हम लोग ग्राइंडिंग पढ़ते हैं, वी स्टडी फिल्ट्रेशन, वी स्टडी व्हाट अगेन, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन एंड फ्लूइडाइजेशन। ओके, सो Sedimentation, screening. सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग देखिए, योर मदर, आपकी मॉम जो है गेहूं को मतलब ये करती है, छन्नी मारती है, दैट इज स्क्रीनिंग। सिंपल, आप लोग जो मैकेनिकल ऑपरेशन में जो रहता है डिब्बा, वो वही चीज करता है कि मेश के हिसाब से आपका जो है वो सैंड कलेक्ट होता है, सिंपल। ओके, आपका जो मिक्सर है, मिक्सिंग करता है, तो उसका ही गेट में उठा के पावर नंबर पूछते हैं, उसका ही मतलब पूरा पावर नंबर वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह आ जाता है। ओके, एंड देन आपका ग्राइंडिंग हो गया, आप खलबत्ता में कुछ भी कूटते हो वगैरह, वो सब चीजें हो गया। तो वही है, रिट्टिंजर्स लॉ हो गया। आप अभी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में, रिट्टिंजर्स लॉ, किक्स लॉ क्या बताते हैं, यही सब चीजें बताते हैं गाइस। बॉल मिल, बॉल मिल क्या करता है आपका? क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। किसी ने आईओसीएल का पेपर दिया था लास्ट, मतलब ये कल के दिन? एनीवन? आईओसीएल का पेपर था कल, किसी ने दिया था? हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए गाइस, मुझे लगेगा नहीं तो आप सो गए। No, sir. दिया था? No, no. नो, किसी ने दिया था? नो बोलिए किसी, सब लोग, मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं गाइस, कम ऑन। हेलो गाइस, देखिए सेशन को इंटरेक्टिव रखना है, नहीं तो मैं बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, आप मोबाइल रख के कहीं चले गए, मुझे क्या पता फिर, है ना? एवरीवन, पंकज दिया था आपने? यस नो? कंटिन्यू कीजिए। आपने कल एग्जाम दिया था आईओसीएल का? यस नो? एनीथिंग? विपुल? No, हेलो? sir, because I am currently in final year. ओके ओके ओके, तो चलिए, तो गाइज आपको सेशन कैसा लग रहा है? मतलब आपको बोर हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एनीथिंग आप अब तक का? इंटरेस्ट। The session is very, very interested. ओके, थैंक्स विपुल। एनीवन? गाइस बोलिए, देखो मैं कोई बहुत ज्यादा सीनियर नहीं हूँ, आपसे 2 साल 3 साल बढ़ाऊंगा, 2 साल बढ़ाऊंगा मैक्सिमम। तो आप एज अ, इसको एज अ डिस्कशन या फिर कन्वर्जेशन बोल सकते हैं। मुझे एक्सपेक्टेड था ज्यादा लोग आएंगे, बट ठीक है, जितने भी लोग हैं तो, कम लोग हैं तो मतलब थोड़ा सा डिस्कशन भी टू वे होना चाहिए, राइट? ओके चलो, तो वहां पे कल एक क्वेश्चन आया था, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल वाला, एनसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी आर माइनस ऑफ आर वाला। ओके, तो वो क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल क्या होता है? वही कंसेप्ट होता है, आपने वो मेले में देखा है, ओके, जहाँ पे वो मौत का कुआं खेलते हैं, तो वो आदमी गिरता नहीं है बेसिकली, वो गोल घूमते रहता है उधर ही। उसके पीछे का साइंस किसी को पता है या फिर किसी ने सोचा है कि क्यों ऐसे वो गिरता क्यों नहीं है? ये तो सिंपल है, कम ऑन। हेलो, जयश्री, अक्षय, एमपी, विपुल, पंकज, कौन सा फोर्स एक्ट होता है या फिर क्या होता है, क्यों? एटलीस्ट आप लोगों ने
सर क्वेश्चन रिपीट सेंट्रीपिटल करो. कौन सा क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर. कौन सा अक्षय? क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए. नहीं नहीं, वो जो मौत का कुआं मेले में देखते हैं, वो आदमी पर्टिकुलरली ऐसे वॉल पे गाड़ी चलाता है, राइट? वो गिरता नहीं है बेसिकली, वो घूमते रहता है उसमें ही। तो क्या साइंस है उसके पीछे, वो गिरता क्यों नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स. एग्जैक्टली, ग्रेट 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 अक्षय। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से मैच करता है वो थोड़ा सा भी अपना स्पीड कम कर लेगा, ही विल फॉल डाउन, ही विल फॉल डाउन लाइक एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे वो घूम रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है आपका? देखिए, पहला तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन या तो ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, या तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता है। तो वो स्मार्टली क्या करता है, ही विल बैलेंस योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल यही होता है। अभी बॉल मिल क्या होता है बेसिकली, ऊपर से बॉल गिरते हैं, आपका मटेरियल होता है, मटेरियल का क्रशिंग होता है। ओके, बॉल ऊपर से गिरते हैं, मटेरियल होता है, मटेरियल का आपका क्रशिंग होता है। तो वो जो क्रशिंग होता है, अगर मैंने जो जो मील है इतना जोर से घुमाया ताकि वो बॉल है वो मटेरियल के ऊपर पड़े ही ना, अगर मैंने इतना जोर से अगर घुमाया, तो वो क्रिटिकल स्पीड हो जाता है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्विलाइज कर रहा हूँ। तो मेरा बॉल क्या करता है, मील के साथ ही घूमेगा, वो ऊपर से नीचे गिरेगा ही नहीं। तो उस केस में हम लोग कैसे डिराइव करते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल करके उसको डिराइव करके क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल निकालते हैं। एनसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी आर माइनस ऑफ आर। सिंपल, ऐसा करके। ओके, तो ऐसे आपको रिलेट करना है। मैकेनिकल ऑपरेशंस तो यही है पूरा, मतलब किचन में ही है, किचन में ही देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स ये इतना नहीं लगेगा आपको प्रोसेस, इसमें प्रोसेस की फील्ड में। इसमें बस आपको इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है, जैसे आपको ईपीसी कंपनी में जाते हो, ओके, इंजीनियरिंग प्रोक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तो ये प्रोक्रूटमेंट वालों का ज्यादा काम है कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये डिजाइन वाला काम तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली प्लांट डिजाइन क्या है। तो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, दैट इज बेसिकली वो प्रोक्रूटमेंट वालों का काम है कि किससे खरीदना है पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर, कितने एरिया का है, एंड दैट ऑल स्टफ। सेकेंड थिंग इज केमिकल टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन वालों को तो पता ही होगा केमिकल टेक्नोलॉजी। अभी इन सब का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, केमिकल टेक्नोलॉजी में होता है। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में हीट एक्सचेंजर्स है, हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं और एक प्लांट बनता है। मास ट्रांसफर ऑपरेशंस में डिस्टिलेशन कॉलम्स मतलब कंट्रीब्यूट होके प्लांट बनता है। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में रिएक्टर से उसका कंट्रीब्यूट होके, मतलब इन सब का एक जो बोलते हैं ना आप लोग, सबका एप्लीकेशन है केमिकल टेक्नोलॉजी। पूरे यहाँ पे एक आपका पंप लगा होगा, यहाँ पे आपका लेवल इंडिकेटर लगा होगा, यहाँ पे प्रेशर इंडिकेटर लगा होगा, यहाँ पे रिएक्टर लगे होंगे, यहाँ पे ये चीज वो चीज सब लग के आपका एक पूरा प्लांट बनता है, जहाँ पे पूरे सब्जेक्ट से एप्लीकेशन होता है। तो केमिकल टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, फ्लो शीट्स होते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा। तो केमिकल टेक्नोलॉजी के टू पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आपका, इनऑर्गेनिक में आपका एसिड्स आ जाते हैं, HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, एंड बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आती है। ऑर्गेनिक में आपका हाइड्रोकार्बन्स वाली चीज़ें आ जाती है, एंड ये सब चीज़ें आ जाती है। तो केमिकल टेक्नोलॉजी पूरे का एप्लीकेशन है। तो केमिकल टेक्नोलॉजी तो मतलब प्रोडक्शन इंजीनियर्स को पता ही है, ओके, कि केमिकल टेक्नोलॉजीज का क्या यूजेज है। आप लाइन ट्रेसिंग करते हो कि जब आप नए कंपनी में जाते हैं, आप देखते हैं कि इस वॉल से, मतलब इस टैंक से निकल से कहाँ जा रहा है, कितना प्रेशर है, क्या है, तो पूरा उसको लाइन ट्रेस करके पूरा प्लांट आप लोग समझते हैं। पूरा प्लांट समझ गए, so then you understand the stuffs in it, you understand the columns in it, at what operating temperature and what operating pressure the column is operating, or which wall is used, whether it is the ball wall, gate wall, या फिर non returning wall, and something like that। ओके, तो यही चीज़ है गाइज। ओके, तो ये पीपीटी भी मैंने बनाया था, इसको खोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी मुझे, मैंने इसमें लिखा था आज सुबह ही सब तो, कि कंडक्शन में फूरियर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, व्हाई इट मैटर्स। तो मैंने पूरा सा कवर कर लिया इसमें। कंडक्शन में रेडिएशन का क्या यूज़ है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ है यहाँ पे। एंड देन मास ट्रांसफर में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है, फिक्स लॉ होता है, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। देखो, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना चाहता, बिकॉज यू ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे ताकि मैं पूरा टेक्निकली घुस जाऊँ। फिक्स लॉ J = -dAB dCA/dz, मैं वो भी कर सकता हूँ, बट
नीडेड नहीं है, ओके, नीडेड नहीं है, वो प्रोसेस के लिए इतनी ये सब चीजें नहीं लगती है। सुहास आपको बताएगा एग्जैक्टली प्रोसेस के लिए क्या लगता है, क्या पढ़ना है। मैंने बस आपको मतलब कैसे रिलेट करना है, फिर कैसे केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, ये मैंने बताया। डिस्टिलेशन का वही मैंने थ्योरेटिकल स्टेजेस ये मैंने बनाया था सुबह, सोचा था कि इससे एक्सप्लेन करूंगा, बट ठीक है। ये टी का एक्सट्रैक्शन है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल, सॉलिड टी लीव्स प्लस हॉट वाटर जो है ना, वो जाके एक्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल मैंने लिखा था। देन बर्नौलीज का स्टेटमेंट, ओके, ये देखिए P1 अपॉन रो जी प्लस U1 Z कांस्टेंट है, एनर्जी पर यूनिट वेट आपका कांस्टेंट है, यूज्ड फॉर रफ एस्टिमेट वेलोसिटी प्रेशर रिलेशनशिप, वेंचुरी फ्लो में, फ्लो मीटर्स में, निग्लेक्ट फ्रिक्शन लॉसेस, करेक्शन आपका देखो ये मैंने बताया आपको, हीट लॉस और पंप का करेक्शन। पाइप फ्लो में यही डार्सी विसबेक इक्वेशन होता है गाइस, 4 FLU स्क्वायर अपॉन 2 GD, तो एफ जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर होता है, अगेन 16/RE वगैरह। ये माइनर लॉसेस जो मैंने आपको बताया कि फिटिंग के Sushan, कारण या फिर आपके, हाँ। yes, your screen is not visible, Sushan. ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, ओके ओके, सॉरी गाइस। ये देखिए आपको दिख रहा है अभी सुहास, इज इट विजिबल नाउ? Uh, yes, 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 yes. Yes, see this PPT today I've created just to explain like what are the main stuff I wanted to: heat transfer, mass transfer, distillation and extraction, fluid mechanics, thermodynamics presented. Okay, so objectives what were there and how to relate. Okay, conduction, convection, radiation, distillation, extraction, Bernoulli's pipe flow, VLE, and then heat transfer overview. कंडक्शन में फूरियर लॉ, कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन। दिस आई हैड प्रिपेयर्ड जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सो आई विल शेयर Sir, दिस विद screen not visible. screen not visible. Yes. It's not visible now. No. Screen is Suhas, is it visible, sir. visible Yes, now? sir, screen is visible. Okay, yes. ओके, सो इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, टी एक्सट्रैक्शन डेमो आई गेव। ओके, तो मैंने यही प्रिपेयर किया था सुबह। ओके, मैंने मतलब बहुत सोच के कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग मतलब सेशन कैसे इंटरेस्टिंग बना जाए थोड़ा सा, तो सिंपल डिस्टिलेशन डेमो, VLE क्या होता है, ये सब देखिए गाइस। ये एक सेशन में कवर नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत मतलब केमिकल इंजीनियरिंग इज वेरी वास्ट। ओके, आई कांट explain it everything in one session. So if Suhas plans few more session, I will go in depth, एक एक सब्जेक्ट लेके पूरा डेप्थ जाएंगे उसमें। पूरा जितना प्रोसेस को लगता है, देखो गाइस, आई एम स्टिल सेइंग आई एम नॉट अ प्रोसेस इंजीनियर। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग 3 साल पहले ही, मतलब कोर फील्ड में मैंने काम कर रहा हूँ 3 साल से, आई एम वर्किंग इन सम डिफरेंट फील्ड। सो बट मैं टच में हूँ। आई गेव एग्जाम ऑल्सो, कल एग्जाम भी मैं देने गया था IUCL का, वो पेपर भी मैं डिस्कस करना चाहता था, बट स्टूडेंट्स बहुत कम है गाइस। Students are very less. I was expecting at least 50 students. Students are very less. So that hello, Vipul. You ओके, सो मैं वो कल का जो पेपर था वो भी मेरे पास सोल्यूशन मैंने लिख के रखा था, ताकि मैं लास्ट में एंड में वो भी आपको बताने वाला था कि क्या क्या सवाल कल पूछे गए थे, और कितना ब्यूटीफुल पेपर था केमिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल का। बट ठीक है, नेक्स्ट सेशन आई वुड होप मोर पीपल ज्वाइन, मोर पीपल विल एंजॉय द सेशंस, एंड दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल आई हैव। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में या फिर किसी और टॉपिक में मेरे मुझे मतलब एक्सप्लेन करना आप चाहते हो, देन यू कैन टेल, अदरवाइज आई विल स्टॉप द सेशन। uh, if you have any questions, just ask. हम्म, कोई क्वेश्चंस है, कोई सब्जेक्ट को कैसा प्रिपेयर करना है? देखिए, ट्रांजिशन के बारे में सुहास बताएगा कि मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, प्रोसेस में जाना है, या फिर बट आपको किसी को गेट के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, या फिर मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, देन हाउ शुड आई डू द प्रिपरेशन, वो वाला क्वेश्चन है। या फिर सर सेमिस्टर में मेरे को ये सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है, देन हाउ शुड आई स्टडी दैट, देन आई कैन एक्सप्लेन दैट। सर एनीवन? आरसीएफएल के लिए तैयारी कहाँ से करनी चाहिए सर? आरसीएफएल See guys, MP, what's your name? MP actually? सर मोहित पाटिल। मोहित पाटिल, सी RCFL का मतलब मैंने पेपर निकाला था 2 साल पहले, बट इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ था। ओके, RCFL का जो पेपर होता है उसमें आपका टेक्निकल से ज्यादा यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन एप्टीट्यूड।
योर एप्टीट्यूड नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज जो आरसीएफएल का जो पेपर कंडक्ट करवाता है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस जो बैंक पीओ वाला पेपर जो होता है, सो दे एक्चुअली कंडक्ट दैट एग्जाम। हाँ सो हाँ एप्टीट्यूड नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। कल भी मेरे मतलब मेरा एप्टीट्यूड का कैसा है, मैं मतलब अभी वर्किंग में हूँ तो एप्टीट्यूड मेरा इतना अभी छूट गया है। तो मेरे टेक्निकल के कल 50 में से 30 क्वेश्चंस आए थोड़ा सा, बट एप्टीट्यूड में जब करने गया मेरे एक भी सवाल मेरे को नहीं बना, हार्डली 3-4 क्वेश्चन ही मेरे से बन पाए लॉजिकल रीजनिंग क्वांट के, और इंग्लिश के थोड़े बहुत। तो मैं मतलब आईओसीएल के कल के पेपर में पूरा मतलब फेंका फेंकी करके आया, बिकॉज टेक्निकल में मैं 2.5 आवर्स का जो पेपर था उसमें 2 आवर्स मैंने टेक्निकल को ही दिया। बिकॉज अभी देखो मैं अभी आईटी डोमेन में वर्क कर रहा हूँ एक्चुअली, जहाँ पे थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग प्लस कोडिंग वाला काम है। ओके, तो मैं 3 साल से केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं हूँ, सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं भी भूल गया हूँ। तो बट जितना याद है मैंने आप लोगों को क्यूरेट करके बस 3-4 दिन से रिवाइज कर रहा था ये सब चीज़ें, ताकि सेशन थोड़ा सा मतलब ये रहे। तो आरसीएफएल के लिए वही है, आईबीपीएस का एप्टीट्यूड आप फटाफट मतलब करो, और टेक्निकल तो वो 1 मार्क का गेट क्वेश्चंस रहते हैं। 1 मार्क के गेट क्वेश्चंस आपको पूरे लगाने हैं। देवेंद्र पुनिया सर बोल के हैं, उनके सेशंस आप देखो एंड देन यू कैन ट्राई दैट। ओके आरसीएफएल। सर ओपी गुप्ता वो प्रेफर है यार नो सर। नो नो नो, ओपी गुप्ता इज फॉर डिप्लोमा। डिप्लोमा के जो एग्जाम्स देने जाते हैं, मैं ओएनजीसी का एग्जाम दिखाया था, मेरे पास पेपर भी है ओएनजीसी का और मेरा आंसर शीट भी है। मुझे बस देखना पड़ेगा कहाँ पे होगा। मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो पेपर भी मैं आपको सेंड करता हूँ। वो ओपी गुप्ता काम का है। देखो जो इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम है वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपसे मांगते हैं वो लोग। ओके, जैसे कल का पेपर बहुत सही था। कल का टेक्निकल का 50 क्वेश्चन जो थे बहुत ऑसम 50 क्वेश्चन थे वो। ओके, तो वो भी मैं डिस्कस करना चाहता था, बट स्टूडेंट्स बहुत कम है गाइस, 12 पीपल में आई कांट डू दैट। ओके, एटलीस्ट आई नीड 40 पीपल्स ना टू डिस्कस दैट। और हेलो गाइस सर। सॉरी टू से बट थोड़ा सा आप लोग एंथुजियाज्म दिखाया करेगा, बिकॉज सी इट्स नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, राइट? सो आपको भी थोड़ा सा मतलब खुद से सवाल पूछिए, खुद से थोड़ा सा कि ये कैसी चीज होता है, फिर कैसे ये थोड़ा सा करिए। यस यस मोहित पाटिल। हेलो सर। हाँ यस यस, डोंट कॉल मी सर, माय नेम इज सुशांत। ओके ओके। यस। I am currently seventh semester BTech in ओके। petrochemical engineering. I am looking a 6 month internship. Could you help me? See again I'm saying Yes, that. yes, Vipul. I will help you regarding this internship. I will call. Yes, sir, you send me your resume just on my WhatsApp. Sir, please, your contact number. Yes, see, Just contact with what? yes, yes, I will share with you. Vipul, I think आप हमारे ग्रुप पे हो लगता है, Hello. तो प्रोसेस वाला ग्रुप में हो आप? Yes, sir. है ना? Suhas, ओके ओके, चलो you तो can share फिर the आप link in the chat. Otherwise, you can share the link in the chat so that everyone can join. सर मैं वो ओके ओके ग्रुप पे हूँ आपका। हो ना, तो आप ओके ओके, सुहास से मैं कॉन्टेक्ट सर कीजिए। लिंक आप शेयर कर दो सर फिर भी। सर आपका नंबर बताइए ना एक बार, मैं उधर सर्च करता हूँ। ओके ओके 837 837 888 888। 837 यस। हाँ सर, मिला मिला मिला। ओके ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन था? सर लिंक भेज दो ना सर ग्रुप की। ओके ओके, ग्रुप की लिंक आई थिंक मैंने शेयर कर दिया लिंक्डइन पे भी, और ऐसे भी बेल पे भी शेयर कर दी। ओके बिल्कुल, यस यस। यस। तो थैंक यू किसी सर। को और क्वेश्चन है गाइस? किसी को और क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी रिगार्डिंग क्या, मतलब कैसे? देखो गाइज, मैं आपको एक अभी वी विल वाइंड अप द सेशन इन जस्ट 5 मिनट्स। सी आप ये मैं आपको ब्रुटल ट्रूथ बोल रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग एक बहुत खतरनाक ब्रांच है गाइज। अगर आपका करियर यहाँ पे अच्छा बन गया है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल एंड अप इन डूइंग अ लेबर जॉब। ओके, सो आपको मतलब पीएसयू में तो ठीक है, अच्छी खासी आपको सैलरी वगैरह मिलती है, बट अगर आपका पीएसयू में या फिर कहीं अच्छी जगह पे नहीं होता है, सो यू विल स्टार्ट रिग्रेटिंग योर करियर चॉइस। ओके, दैट व्हाई आई चूज दिस फील्ड, बिकॉज नॉट लाइक इट्स एन इजी ब्रांच ऑल्सो।
केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसा भी नहीं है कि भर भर के जॉब्स है, वैकेंसीज है। ठीक है, प्रोडक्शन में अगर आपको जॉब मिलता है, प्रोसेस में अगर आपको वर्ली, जैकॉब्स, ब्लैक एंड वेज एंड थीसन ग्रुप, उडे एंड आपका पेट्रोफैक इधर आपका प्रोसेस में लग जाता है, देन लाइफ इज सेट। ओके, देन यू कैन वर्क ऑन एस्पेन आईसीएस, डीडब्ल्यू सिम, जैसे सुहास भी वर्क कर रहा है, एंड देन लाइफ इज सेट। अदरवाइज अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन में करूंगा, गाइज हार्डली, आई एम ऑल्सो, मैं कोई बताने में शर्म नहीं कर रहा हूँ, 20,000 तक भी पगार, मतलब जो सैलरी मिलना डिफिकल्ट हो जाता है गाइज। ये आईटी की तरह नहीं है, अभी तो आईटी का भी बूम चला गया है। एक अच्छा करियर करने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको आपका क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज फिर आप दूसरा फील्ड फिर देख सकते हैं सीधा, सिंपल क्लियरिटी। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने 7 साल केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, हर एक आईआईटीज में मेरे दोस्त हैं, हर एक रिसर्च फील्ड में मेरे दोस्त हैं, हर एक पीएसयू में मेरे दोस्त हैं, मैंने मुझे पूरा इस फील्ड का इन एंड आउट पता है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, स्टडी आपको बहुत अच्छे से करना है। यस अक्षय, यू आर रेजिंग द हैंड। अक्षय, सर यू आर रेजिंग द बंदा, हैंड। यस यस अक्षय। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, हाँ, yes, यस yes, यस, yes. यस यस, यू आर ऑडिबल। सर एक बंदा है जो कि अभी 4 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके पास, और वो प्रोडक्शन में करंट वर्क करता है, हम्म और उसको प्रोसेस में करियर करना चाहता है वो। तो हम्म उसके लिए कुछ क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना पड़ जाएगा। सी अक्षय, सुहास ओवाळ, जो महादेव ओवाळ है, वो ही विल, ही इज द राइट पर्सन टू टेल यू दैट प्रोडक्शन से प्रोसेस में कैसे आना है, या फिर मार्केटिंग से प्रोसेस में कैसे आना है, या फिर प्रोसेस में कैसे करना है। आई एम हियर फॉर टेक्निकल, टेक्निकल वाला पार्ट। ओके। ओके सर, और एक क्वेश्चन है। वही currently I am वही working as a अभी shift engineer। अभी कैसे प्रोडक्शन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको सबको लगता है कि प्रोसेस में आना है, लेकिन प्रोसेस भी इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। तो अभी अभी तो फिलहाल तो वो बताएगा। यस यस। हेलो। ठीक है, बोल रहे थे। हाँ, यस यस सुहास, थोड़ा आपका आवाज कट रहा है। ओके, नाउ नाउ सही है। हाँ 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 हाँ, परफेक्ट, बोलिए आप, बोलिए तो बोलिए सुहास। अभी जिसको भी प्रोसेस प्रोडक्शन से प्रोसेस में आना है, तो पहले तो आपको आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब प्रोसेस में इतने कैलकुलेशन करने पड़ते हैं कि आप सोचिए मत, क्योंकि स्टार्टिंग प्लान को पूरा प्लान करना पड़ता है। मतलब प्लांट लेआउट से स्टार्टिंग करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ऑल इक्विपमेंट्स उसमें आ गया, ऑल मतलब जितने भी आपके इक्विपमेंट के कैलकुलेशन आ गए, रिएक्टर आ गए, तो वो सारे क्वेश्चन वो वाले सब वहाँ पे आ गए। इक्विपमेंट हो गए, फिर डिस्टिलेशन डिजाइन, ओ रिएक्टर डिजाइन, हीट एक्सचेंजर डिजाइन, ऑल ऑल दैट पार्ट इंक्लूडिंग इन द प्रोसेस डिजाइन। सो मतलब हम अभी चालू करने वाले हैं, मतलब हम हमारी टीम जो आईआईटी के जो फ्रेंड्स है हमारे। लेकिन जो अभी का सेशन था वो केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड था, तो सुशांत इज वेरी गुड एट द केमिकल इंजीनियरिंग, ही इज आल्सो टॉपर एट टू एंड आल्सो डिप्लोमा। सो हम आगे का सेशन भी सुशांत के साथ एक करेंगे रिगार्डिंग नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें वो बहुत डीपली आपको स्टडी करने के लिए, मतलब कैसे हाउ टू स्टडी केमिकल इंजीनियरिंग वो आपको बताएगा। यस, जैसे ओके सुहास सुशांत। ने बताया गाइस, बहुत मतलब सही बात बोली उन्होंने, कि आपको लगता है कि प्रोसेस में मतलब ऐसा है वैसा है, बट प्रोसेस इंजीनियरिंग आल्सो वेरी हार्ड गाइस। केमिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं। आपके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, आपके यूनिट एंड कन्वर्जन्स अच्छे होने चाहिए। और अगर कोई ट्रबल शूट होता है प्लांट में, फटाक से यू नीड टू परफॉर्म द मास बैलेंस, केमिकल बैलेंस, फटाक से आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। ओके, फॉर दैट देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं बहुत खतरनाक हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में, कुछ भी बता दो कर दूंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट फंडामेंटल्स के लिए बेसिक मैं आपको मदद कर सकता हूँ कि क्या कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उसके लिए तो मतलब आप कहीं भी कितने भी सेशंस बोलिए, आई विल मतलब हेल्प कि कैसे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट इट। ओके, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आई एम गुड एट इट। बाकी तो सुहास आपको गाइड करेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, इट वाज गुड एंड एक्सेलेंट स्पीकिंग विथ यू ऑल। जस्ट थोड़ा सा एक सजेशन रहेगा कि आप देखिए, मैं कोई बहुत सुशांत सीनियर नहीं हूँ, जस्ट आप जस्ट ये कर सकते हैं। एक्सप्लेन, मतलब उनको हाउ इम्पैक्ट क्या होगा एआई का केमिकल इंजीनियरिंग पे, तो वो थोड़ा सा बता दिया तो बढ़िया रहेगा।
ओके ओके ओके, देखो देखो, जैसे मैं आईटी में काम कर रहा हूँ कि मेरा मोस्ट ऑफ द काम कोडिंग में है। कोडिंग में तो ऑलमोस्ट मैं आपको बोलता हूँ बहुत ज़्यादा काम जो है, अब तो चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी तो बहुत छोटा वर्जन है, मतलब एकदम सा, बट बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स आ गए जिसमें कोड तो डायरेक्टली, मतलब पूरा का पूरा 95% कोड आ रहे हैं। जैसे मैं मेरा कोडिंग जो भी करता हूँ कंपनी में, तो 95% कोड तो सीधा हम लोग मतलब बाहर से ही आता है। तो पहले जो मैनुअल वाला चीज़ है वो बंद हो गया। तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो पीएफडी पीएनआईडी जो आप बनाते थे, वो थोड़ा सा अब एआई असिस्टेड होगा। अब बहुत ज्यादा जो टूल्स है, जो सॉफ्टवेयर्स जो है आपके, एस्पेन हाइसिस है, एचटीआरआई है, आपका जो एस्पेन प्लस है, उसमें क्या होगा गाइस, एआई असिस्टेड होगा। तो जहाँ पे भी आप डिजाइन करोगे वहाँ पे एआई का एक असिस्टेड रहेगा जो आपको करेक्शन देगा। नाउ मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग इन टेक्नीमाउंट, तो मैं आपको पूरा इंटरनल नहीं बता सकता, बट टेक्नीमाउंट में अभी क्या हो गया है, एआई असिस्टेड करेक्शन होता है। मतलब जो रिव्यूज होता था पीएफडी पीएनआईडी का, भी वो एआई असिस्टेड हो गया है। तो एआई वो क्या करता है, वो रिव्यू आपको बता देता है कि ये वॉल यहाँ पे होना चाहिए था, ये पर्टिकुलर वॉल आपने गलत लगाया है, इधर ये इतना पाइप होना चाहिए था। तो वो लोग करेक्ट करके फिर वो टेक्नीमाउंट में कर देते हैं। इवन टेक्निक पे भी वैसा हो रहा है, ब्लैक कैनवस में भी वैसा हो रहा है। तो एआई का इम्पैक्ट है, बट आपको फंडामेंटल्स क्लियर रखने हैं, फंडामेंटल्स आपको स्ट्रांग रखने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा जो है 12 के 12 सब्जेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे स्टडी करना है, कैसे रिलेट करना है। फंडामेंटल्स आपका सॉलिड फाउंडेशन रहेगा गाइज, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आई देखो, एआई का इम्पैक्ट आईटी को ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोसेस इंजीनियर्स, इतना बात आप सब लोग याद रखिए। आईटी में ज्यादा इम्पैक्ट होगा, प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर्स को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी चैतन्य बोल रहे कि ईडीआर पे क्या रहता है, तो ईडीआर में हम हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते हैं, उसमें पूरा आपका डिजाइन करके फिर उसको डिजाइन की रेटिंग भी करते, चेक करते हैं कि वो बराबर है कि नहीं, उसमें सब उसका टेमा शीट ये सब उसमें अपन डिजाइन करते हैं हीट एक्सचेंजर डिजाइन में, ईडीआर में। So we will also conduct one of the session on SPN, HSS and SPN EDR in few days. चलेगा किसी को, अगर किसी 5 मिनट Yes. हम लोग देते हैं, 5 9:15 को विल वाइंड अप द सेशन। किसी को डाउट रहेगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट, और अदरवाइज वी विल एंड अप द सेशन गाइस। सर किसी को क्वेश्चन है। इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी डिफिकल्ट अगर रहेगा तो हम लोग वो भी कंडक्ट करवाते हैं। ओके, जब आपका प्रोसेस का स्वास्थ्य क्लास कंडक्ट करेगा, सो आई वुड बी कंडक्टिंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू अप्रोच टू द इंटरव्यूअर इन इंग्लिश, हाउ टू कीप योर पॉइंट्स इन इंग्लिश, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, हाउ टू पोर्ट्रे योर सेल्फ। दैट वुड बी ऑल्सो डन बाय मी। आप आंख बंद करके उस पर भरोसा रख सकते हैं। मैंने मतलब सोलापुर में भी स्पोकन इंग्लिश में मैं था थोड़ा, मतलब उधर भी मैंने लाइक हाउ टू स्पीक, हाउ टू put your own thoughts in your own words, so I will also help in that. Okay, so once Suhas will help you like कैसे एडमिशन क्या वगैरह होगा उसका, so after that I would be doing that. Okay, so last Okay. 3 minutes if you want to ask anything. Anyone have any question? Just ask. Unmute your mic and ask. Okay, okay Suhas, so if nobody is having Okay. doubt, we will Just wind up I the will session. give just a small एक interruption. Just thanks Sushant. Thank you. Okay. Anyone? एक Yes. रिक्वेस्ट Yes, है सर, खाली एक। Thank you, sir. हेलो। yes, yes, Okay. yes Okay. Pankaj. हाँ। यस। आप एसपेन और ईडिया का बोला ना, इन इफ सेशन अगर होता है तो इट विल बेटर। कब तक आप बोल रहे हैं वैसे? क्या क्या? नेक्स्ट 10 to 15 days में हम कंडक्ट करेंगे एसपेन और EDR पे। तो ओके। उसका यस। बेसिक हम आपको बताएंगे कैसे, हाउ टू सेलेक्ट द कंपोनेंट्स, हाउ टू ऐड कंपोनेंट्स इन द एस्पेन हाई सिस्टम। वहाँ पे इंपोर्ट कैसे करके फिर एस्पेन EDR पे आप वहाँ पे इंपोर्ट करके कैसे उसको डिजाइन करेंगे डायरेक्टली, तो वो वाला सेशन हम करेंगे उसमें। मतलब एक बेसिक आप आइडिया आ जाएगा कि कैसे एस्पेन हाई वर्क करता है और EDR वर्क करता है। यस यस। ओके ओके ओके। यस। ओके, गाइस, थैंक हाउ यू। वाज द सेशन? एक थोड़ा सा रिव्यू दीजिए कोई, मतलब सेशन आपको कैसा लगा, या फिर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट, या फिर कुछ टेक्निकल ज्यादा हुआ, या फिर थोड़ा सा एनीवन, कोई भी कोई भी कोई भी। अभी
हाँ मोहित बोलो, आप हिंदी मोहित में भी पाटिल। बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है, सो हाँ जस्ट इंग्लिश देखो, मैं जस्ट इंग्लिश ज्यादा emphasize कर रहा हूँ बिकॉज इंग्लिश क्यों स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है गाइस, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू. समटाइम्स इफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज गुड द इंटरव्यूअर गेट इम्प्रेस्ड. सो वो इसलिए, वरना मराठीत तर मी गावठी बोलू शकतो, हिंदी बोलू शकतो, त्याचा काही विषय नाही. मी इंग्लिश त्यासाठीच बोलत होतो की तुम्हाला म्हणजे थोडंसं सवय व्हावं म्हणून, बाकी काय नाही. just I will just thank that's the brings us the end of the insightful session on the how to study and relate the chemical engineering to the real world. A big thank you to Sushant conduct this Thank session and who thank you. joined this session us today and made this webinar truly interactive and meaningful. So we hope you now have clear understanding how to connect the theory with real industrial application and approach chemical engineering the smarter way. So we at Processwala are committed to supporting your professional growth through such initiative, webinars, and all that we in the future we Yes conduct sir, also sure. some courses. So thank you everyone for joining us. Thank you. Thank you guys. Chand, thank you so much. Thank you so much. Thank Okay, you for bye the bye session. guys. Thank you. Thank you, Vipul. Thank you, Pankaj. Thank you all guys. Okay. Happy chemical engineering guys. Bye.